नमस्कार। सहस्राक्षं गुणाधीशं स्वगुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयत्येनं शास्त्राद्यं प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं डॉक्टर विद्यासागर पंचाल निरोग स्ट्रीट लाइव क्लासेस में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। टुडेज टॉपिक इज़ उदर चिकित्सा. As you all know, Udara Chikitsa is explained by all the acharyas. It's a very important chikitsa in Charaka Chikitsa Sthana, and also Ashtanga Hridayakara and also Sushruta explained it. So today we will critically understand what is Udara Roga. However, Udara Roga cannot be completed in 1 hour. So I have decided to take only one part of Udara Roga, that is up to the Bheda of the Udara as one part, and followed by the other part in the next class. So I think tomorrow we'll go with the Chikitsa part. Today I will only concentrate on the Udara Roga, Nidana, Samprapti and up until the types. So before beginning with the class, I want the audience to please have Charaka Samhita along with you today, as it is very important to understand the wordings from Charaka Samhita, each and every word. So it will be easy if you have Charaka Samhita with you. So let's begin with the understanding of Udara Roga. The meaning of Udara Roga is not concerned with the disease occurring in the Udara. As far as Udara Roga is concerned, everybody thinks that Udara Roga means the disease which is occurring in the Udara. Not like that. Udara Roga rather specifically concerned with the disease which cause the enlargement of the Udara. Because even Grahani, Shardi, Atisara, all these are Udara Uttha Rogas only. But when the meaning of Udara Roga is concerned, Udara Roga is the one which cause enlargement of the Udara. Okay. So in all the Udaras, we can see the Vikriti of Annavaha Srotas, Rasavaha Srotas, Svedavaha Srotas, Purishavaha Srotas, Raktavaha Srotas. So multiple Srotas are involved, hence it is a dosha Sanghataja Vyadhi, and very important as far as the diagnosis and treatment is concerned. So Udara is considered also one among the Mahagadas. Even Acharya Charaka quotes it under one of the Mahagadas. So for that you have to go for again Charaka Indriya Sthana 9th chapter. There you will get the reference of explaining Udara as one of the very important and very dangerous disease. So there Acharya Charaka says, Indriya Sthana 9th chapter and 9th shloka, Vatavyadi apasmari kushti shofi cha tatho udari. Vatavyadi apasmari kushti shofi tatho udari gulmi cha madumehi cha rajayakshmi cha yonaraha achikitsya bhavanti. These are achikitsya vyadhis when they are out of control. Bhavanti ete balamamsa kshayasati anyeshu api vikareshu tan bhishak parivarjayet. So these kind of diseases, when the patient is in suffering with these kind of diseases, it becomes very difficult to cure. Hence these diseases come under the Ashta Mahagadas, the 8 very dreadful diseases which are explained by Acharya Charaka. So first and foremost reference of this Udara comes in Sutrasthana of again Charaka Samhita. In Charaka Samhita Sutrasthana Trishothi Adhyaya, that is the 18th chapter of Charaka Sutrasthana, there comes the first reference of Udara. That is when Acharya was explaining the Ekadeshija Shothas. So Sthanika Shotas, when Acharya was explaining, in that time the first and foremost reference of Udara Roga comes. That is the shloka number 31 of Charaka Sutrasthana 18th chapter. There he says, Yasya Vataha Prakupitaha Tvakmamsantaramashritaha Shotam Sanjanayet Kuksha Udaram Tasya Jayate. This is the reference. We come first of all we come in contact is that Charaka Sutrasthana 18th chapter. So this is the first and foremost reference in explanation of Sthanika Shotas by Acharya Charaka. So Visheshan of Vata takes shelter in between Tvacha and Mamsa and causes Udara, that is Utsedana of Udara, that is called as Udara. This is the reference in Charaka Sutrasthana 18th chapter. So another reference in Charaka Nidana Sthana,
chapter 12th, there the Acharya Vagbhata says, Udaram cha kukshim anahya doshah kurvate. So doshas or the vitiated doshas come in contact with this udara, and there they cause sanchaya of the sanchaya of the doshas and causes utseda. So this is about the udara, the brief explanation or the brief introduction as far as udara is concerned. Now I want to explain you about the organs which are involved in causation of this disease. So first and foremost organ which is very importantly involved is the liver. Then the very important one is the spleen. Then the very important one is hridaya or heart, and also the portal venous system and the intestinal system. So first and very important organ as far as this udara is concerned is again the liver. So first we'll go for the introduction of liver, how it is made up of, for everything. For that understanding is again better in Sushruta Sharirasthana. So we'll go for Sushruta Sharirasthana 4th chapter. There he explains Dvitiya Raktadhara Mamsasya Abhyantarataraha Tasyam Shonitam Visheshascha Tasya Sirasu Yakrit Plihnoscha Bhavanti. So the Yakrit and Pliha are made up of are present in Dvitiya Raktadhara Kala. The kala by which these organs are made is Dvitiya, that is Raktadhara Kala. So there is the direct intervention with direct relation between Rakta and Yakrit. And one more, the origin of the Yakrit is again explained as Garbhasya Yakrit Plihano Shonitajao. That is again explained in Sushruta Sharirasthana only. So 4th chapter. Garbhasya Yakrit Plihano Shonitajo. In the Garbhavastha, Yakrit and Pliha are again derived from Shonita, that is Rakta. So in the intrauterine life. So Shonitaccha Samutpanna Rasaranjana Tatpara Raktavahi Siramula Pliha Kyata Maharshibi. This is the explanation given by Sharangadhara Samhita Purva Khanda. So in modern also, when you compare these qualities, the recent author, that is the Gananath Sena Acharya, what he says in his Pratyaksha Shariram Pratyaksha Shariram book, he mentions that Yakrit is a Bruhat and Ghana Komala Granthi. That is the explanation by Gananath Sena, which is he is a recent author in Ayurveda. He says Yakrit as a Bruhat and Komala Granthi, that is Ghana Granthi. So it's a Granthi, he says. The liver also comprises of the biliary tree, according to his explanation that comes. So modern explanation or the contemporary explanation of the liver anatomy is concerned, again they explain that the liver is a multifunctional organ. When you see the physiology according to these contemporary sciences, they explain that the production of the bile is the first and foremost important work of liver. Then it breakdown of the wastes and the breakdown of the fats from the small intestine during the digestion, again it is taken up by the liver. And production of cholesterol is also a very important function, and also conversion of excess glucose into the glycogen, that is also again the work of the liver only. And the processing of the hemoglobin and the processing of the iron and clearing of the blood drugs which are and again the poisonous substances. This is also the function of liver. And the regulation of blood clotting is also one of the important function of the liver. And clearance of bilirubin is also the function. So there are multifold functions of the liver when you see in this liver physiology. So why our Acharyas has not mentioned the physiology? They are definitely mentioned. If you want to understand the liver physiology, again we have to go for Sharangadhara Samhita, that is in the Purva Khanda. So in Sharangadhara Samhita Purva Khanda, on the 5th chapter, Sharangadhara explains Shonitacha Samutpanna Rasaranjana Tatpara, that is Shonita Utpatti, Shonitaja Utpatti of the Yakrit, and the karma is Rasaranjana, Rasaranjana karma, that is conversion of Rasa into Raktadhatu, giving color to the Raktadhatu, which is the function of liver only. So Yakrit Ranjaka Pittasya Sthanam, how it acts? By as it is the Ranjaka Pittasya Sthanam. So Ranjaka Pitta and liver, they both play a role in conversion of Rasa Dhatu into Rakta Dhatu. This is the physiological function of Yakrit is concerned. So during Garbhavastha, Yakrit and Pliha both get developed from Rakta Dhatu. Just now we have seen as it is the sthana of Ranjaka Pitta, it also help in Rakta Dhatu Utpatti. Due to its function, it is said to be Raktashaya and Moola sthana of Raktavaha Srotas. And one more function as explained in Sharangadhara Samhita is Rasastu Hrudayam Yati Samana Maruteritaha Ranjitaha Pachaka Pitta Ranjaka Pachitastatra
पित्तेन आयाति रक्ततम. This is also physiology of function of or the production of blood is concerned. So yada raso yakrit yati tatra ranjaka pittasya. This is also explained by Sharangadhara. When the rasadhatu comes into yakrit, then there it gets the varna and the raga, what we say, the rakta varnata is got by, or the ragam pakam cha samprapya sa bhavet rasa rakta sanjanakah. That is, when raga and paka are attained by the rasadhatu, and it is converted into rakta dhatu in the liver. So this is about the physiology and the basic understanding of the physiology of yakrit we have understood. So this was basic to be understood before going into the exact pathology. So physiology is very important, hence we have finished it. So what is the main cause of udara? What is the main cause which causes udara vyadhi as such? So when you have to understand that udara, so you have to go for Charaka Chikitsasthana, again 13th chapter. There he explains अग्निदोषान् मनुष्याणां रोगसंगा पृथग्विदा मलवृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषाण उदराणि. तो दिस इज द फर्स्ट the ninth shloka in the very beginning of the udara roga. He explains that Agni-doshan manushyanam roga-sanga prithagvida. So Agni-dosha is the first and foremost thing for udara to be developed. Please understand, without the Agni-dosha, no other diseases in the body happens, especially udara. So Agni-doshan manushyanam roga-sanga prithagvida. Agni-dosh से ही रोगों के पृथक पृथक अवस्थाएं हम देखने को मिलते हैं. सो अग्नि के संग ही ये रोगों की उत्पत्ति का कारण है, तो उसमें भी स्पेशली उदर रोग है. जो मलवृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषेण उदराणि. तो अग्नि दोष से क्या होगा, मल संचय होने लगेगा, आम का संचय होने लगेगा शरीर में, तो उसकी वजह से ये उदर के रूप में परिणित हो जाएगा. सो और एक अष्टांग हृदय के निदान स्थान का 12वें अध्याय में भी यही सेम रेफरेंस आता है. रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो विशेषेण उदराणि. तो अगेन द मीनिंग इज सेम बोथ. सो उदर आदि व्याधि जो होते हैं वो अग्नि के दुर्बलता से ही और अग्नि के मांद्य से ही, अग्नि के विकृति से ही होते हैं. सो अग्नि प्लेस वेरी मेजर रोल इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीजेस. हेंस तीक्ष्णाग्नि इज टू बी मेंटेन्ड. So Samagni is to be maintained, not Tikshnaagni. Again, it is pathological. So coming to the roga exactly as such. So when you open Charaka Chikitsasthana 13th chapter, that is Udara Roga, there Acharya beautifully mentioned some of the nidanas. They are like when you open Charaka Chikitsasthana Udara Adhyaya, the nidanas which are mentioned are Atyushna Lavana Kshara Vidahi Amla Garashanat. अति उष्ण आहार विहार, अति क्षार का सेवन, अति लवण रस का अति सेवन, विदाही आहारों का सेवन, मिथ्या संसर्जना, द दोषों का संचय, दोषों का शोधन हो गया, उसके बाद संसर्जन कर्म करना रहता है. उस समय में आप मिथ्या संसर्जन कर रहे हैं. अगर संसर्जन क्रम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, अग्नि का मंद है और उस समय आप संसर्जन नहीं कर रहे हैं, उस संसर्जन कैसे करना है, अगेन सिद्धिस्थान में आचार्य कैसे बताते हैं, यथा अणुरग्नि तृणगोमयानी संदूष्यमाना भवति क्रमेण. अणु अग्नि रहता है, उसको हम संदूषण करने के लिए थोड़ा 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 करके पेय विलेपी कृतयुषा ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके उसका अग्नि का तीक्ष्ण करना रहता है. उस ऐसे करना छोड़कर अगर हम सहसा भोजन करते हैं, बहुत उत्तम मात्रा में अगर आहार विहार का सेवन करते हैं, तो वो ऐसे व्याधियों का उत्पन्न कर सकता है. तो ये एक निदान है, मिथ्या संसर्जन. रूक्ष विरुद्ध अशुचि भोजनात्. रूक्ष आहार विहार करने से, अशुचि भोजन करने से. अगेन अशुचि भोजन हियर दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द अनहाइजेनिक फूड विच इज अगेन द कॉज ऑफ फॉर multiple infections and all. So this is also very important, and they have mentioned a set of diseases which are upadrava swarupi and they may cause this land up into udara. They are like pliha, arsha, grahani dosha, karshanat, karma vibhramat. So pliha रोग का neglect करने से, अर्श, ग्रहणी रोग. So these all diseases can again land up into this pathological condition called udara. And some of the other nidanas like क्लिष्टानाम प्रतिकारात, रौक्ष वेग विधारणात, स्रोतसाम दूषणात आमात. तो जो भी ये ऐसे जो निदान हैं, उष्ण लवण क्षार, सो विरुद्ध आहार, इन सब से क्या होगा, स्रोतस की दृष्टि हो जाएगी.
स्रोतस दुष्टि का मतलब यहाँ पर है आप्यायन होगा, विमार्गमन होगा, ये सब उत्तरोत्तर होते जाएगा, तो वहाँ पे एक कोटिंग होता जाएगा अंदर। अगर वहाँ पे होने से स्रोतस दुष्ट हो जाएंगे, दुष्ट स्रोतस में स्रोतस अवरोध होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो स्रोतस अगर अवरोध हो जाएंगे तो वहाँ पर संगात्मक विकृति की उत्पत्ति होगी, तो उसकी वजह से अगेन उदर रोग होने की संभावना रहता है। तो अतिसंचित दोषाणाम पापम कर्म च कुर्वताम, तो और एक निदान यहाँ पे बोले हैं अतिसंचित दोष, दोषों का प्रतिकार करता रहना चाहिए। संचित दोष अगर बने रहेंगे शरीर में, उनका शोधन नहीं करेंगे तो ये ऐसे संचित दोष उदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पाप कर्म च कुर्वताम, पाप कर्म से भी उदर की उत्पत्ति आचार्यों ने बोला है। उदराण उपजायन्ते मंदाग्निना विशेषतः, अगेन दे स्टार्टेड विथ एक्सप्लेनिंग द फ्रॉम द मंदाग्नि ओनली एंड दे एंडेड द निदान विथ मंदाग्निना विशेषतः, स्पेशली मंदाग्नि इज द कॉज हियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। सो अभी हमने ये सब निदानों को देखा। सो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज निदानास वी कैन सिस्टमेटिकली कैटेगराइज देम इनटू टू वेज। वन इज अभिषंदात्मक निदान है, तो दूसरा विदाही निदान है। विदाही आहारों का सेवन एक तरफ है, दूसरी तरफ अभिषंदी आहारों का सेवन है। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट निदान आचार्यों ने बोला है। तो आचार्यों ने ऐसे करके कैटेगराइज नहीं किया है, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिकली उनकी तरफ देखते हैं तो एक विदाही आहारों की ग्रुप है, दूसरा है अभिषंद उत्पन्न करने वाले आहारों की ग्रुप है। तो विदाही आहार जैसे द फूड सब्सटेंस विच कॉज इंटरनल बर्निंग, और विदाह और आम्ल अवस्था पाक में जो ज़्यादा देर तक रहता है उसको विदाही कहते हैं। तो ऐसे द्रव्यों का अधिक तरह से सेवन करने से। और अभिषंदात्मक आहार कौन से है? अभिषंद द फूड विच कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्रोतस अगेन, तो ये स्रोतस के अभिषंद से ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये अभिषंदात्मक जो विकृति है इसकी वजह से कफ की प्रकोप होगा, तो कफ के प्रकोप से अगेन ये स्रोतस में रोग उत्पन्न होने की संभावना रहता है। तो जैसे दधि है, मांस है, आनुपमांस है, तो ये भी जो भी क्लीन पदार्थों का सेवन है ये सब अभिषंदी में आते हैं। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निदानों का अंडरस्टैंड किए बिना हम रोग का प्रतिकार नहीं कर सकते। तो ये निदान ऐसे दो तरह से हमने डिवाइड कर लिए। उसके बाद हम जाएंगे पूर्व रूप के तरफ। तो ये पूर्व रूप क्या है? तो व्याधि के पूर्ण रूप से उत्पत्ति होने से पहले ही जो वैद्य को सूचना मिलते हैं लक्षणों से, उससे हम पूर्व रूप कहते हैं। सो दीज आर द पूर्व रूपास इन उदर इज कंसर्न। तो ये उदर रूप में ये पूर्व रूप का बहुत विशेषता है। उदर में पूर्व रूप का होने का मतलब है कि इस अवस्था में संभल जाना चाहिए, वैद्य को इस अवस्था में जल्दी से जल्दी त्वरया चिकित्सा करना चाहिए, तो ये जलोत्पत्ति की तरफ नहीं जाए तो रोग। तो ये से पूर्व रूप, उदर के पूर्व रूप चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों ने थोड़ा ये पूर्व रूप जो अगर हम क्लिनिकली अगर हम अच्छे से अगर देखते हैं तो ये गुल्म के पूर्व रूप के समान ही है। तो वहाँ पर भी स्थानिक दोष में भी स्थानिक शोथ के रूप में जब उदर का एक्सप्लेनेशन है, तो वहाँ पर भी गुल्म को भी स्थानिक शोथ के जगह पर ही एक्सप्लेन किया है, और ये पूर्व रूप भी थोड़े दोनों मिलते जुलते हैं। इसलिए गुल्म और उदर रोग दोनों की अच्छे से समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विबंध, अग्निसाद, आदमाना, ये जो भी पूर्व रूप हम देखते हैं अभी, तो ये सब ये थोड़े गुल्म के इक्विवेलेंट ही दिखते हैं। सो पूर्व रूप ऐसे बताते हैं आचार्य, क्षुन्नाश, स्वादु, अतिस्निग्ध, गुरु अन्नम पच्यते चिरात। सो क्षुधा का नाश होगा, अग्नि का नाश होगा, और स्वादु अतिस्निग्ध गुरु अन्नम पच्यते चिरात। तो थोड़ा भी अगर आहार वो खाएगा तो वो बहुत देर तक पाचन करेगा। तो ये पूर्व रूप है, तो इस अवस्था में समझ जाना चाहिए। क्षुधा का नाश हुआ है, लॉस ऑफ अपटाइट है। भुक्तम विदह्यते, जो भी खाएगा वो विदा हो रहा है। सर्वम जीर्णम जीर्णम न वेत्ति च, उसको ये भी समझ में नहीं आएगा पेशेंट को कि जीर्ण हो भी रहा है या क्या अजीर्ण ही हो रहा है। तो ये सब हमें अंडरस्टैंड करना होगा। सहते नाति सौहित्यम ईषत शोफश्च पादयो हो, तो ईषत शोफ उत्पन्न होने लगेगा, पादों में थोड़ा थोड़ा ऐसे माइल्ड स्वेलिंग का उत्पन्न होते जाएगा। तो इस अवस्था में पाद पर शोफ आ रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है। तो these may be due to any other reasons. It may be a cardiac origin, it may be a renal origin, और it may be hepatic origin. कौन सा शोथ है इसका अगर हम अच्छे से अगर डिवाइड करके इसके चिकित्सा इसी अवस्था में अगर शुरू करते हैं तो रोगी के गुण होने के, रोगी का आराम मिलने की संभावना ज़्यादा रहता है।
तो ईषत् शोफस्य पादयो इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पूर्व रूपा। अगर पाद पर शोथ आने लगा तो समझ जाना चाहिए कि ये पूर्व रूप है। तो श्वयथु बलक्षय है, व्यायाम करने से, थोड़ा भी व्यायाम करने से श्वास की उत्पन्न होना, तो ये सब पूर्व रूप है। वृद्धि ही पुरुष निचयो रूक्षा उदावर्त हेतु का, और बस्ती संधि रूक आत्मानम वर्धते पाट्यते पिच, ये सब लक्षण आचार्यों ने बताते गए हैं। वहाँ पर उसको मोशन करने में तकलीफ होगी, भूख नहीं लगेगी, और ये उदावर्त के लक्षण दिखने लगेंगे, ये सब होगा। आतन्यते च जठरामी लघु अल्प भोजना, थोड़ा भी अगर भोजन करता है तो जठर का जकड़ जाने जैसा, जठर प्रदेश में वृद्धि हुए जैसा उसको अंदाज होने लगता है। तो ये राजी जन्म वलीनाश इति लिंगम भविष्यतम, तो थोड़े दिन के बाद राजी जन्म होगा। राजी का जन्म मतलब ऑन द एब्डोमेन देयर यू कैन सी प्लेक्सस ऑफ वेन्स एंड ऑल। एंड वलीनाश, द वली जो होंगे, मतलब जो स्ट्रय हम जो कहते हैं, एब्डोमेन पर जो स्ट्रय होते हैं, तो वो उनका नाश होकर एब्डोमेन भर जाने लगेगा। तो ये पूर्व रूप के लक्षण होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत पे अगर हम देखते हैं, सुश्रुत निदान स्थान के 7 चैप्टर में भी सुश्रुत ने भी ऐसे ही सेम लक्षणों को बोला है। तत्पूर्व रूपम बलवर्ण कांक्षात वली विनाशो जठरे ही राज्य, तो ये भी सेम ही है। जठर पर मतलब उदर प्रदेश में राजी का जन्म होगा, वली का नाश होगा, जीर्ण अपरिज्ञान मतलब जीर्ण और अजीर्ण का उसका ज्ञान नहीं होगा, विदह्यते जो भी खाएगा का उसका विदा होगा, बस्तौ रुजह बस्ती प्रदेश में उसको रुजा होने लगेगी। तो ये पूर्व रूप के लक्षण हैं उदर व्याधि के। और अगर हम संप्राप्ति के तरफ जाते हैं तो संप्राप्ति का यहाँ पर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संप्राप्ति को हम कैसे समझ सकते हैं? तो एक मिनट, सॉरी, संप्राप्ति को समझने के लिए अगर हमें फिर से जाना पड़ेगा चरक चिकित्सा स्थान के 13 चैप्टर पर। तो वहाँ पर संप्राप्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य चरक लिखते हैं। रुद्वा स्वेदाम्बु वाहिनी दोषः स्रोताम से संचिता, यहाँ पर रुद्वा स्वेद अम्बु वाहिनी दोषा स्रोताम से संचिता, यहाँ पर स्वेद और अम्बुवाही स्रोतसों में अवरोध का पहला यहाँ पर संप्राप्ति हो रहा है। तो पहले क्या होगा? अम्बुवह स्रोतस, मतलब अम्बुवह स्रोतस का मतलब क्या है? सर्व शरीर में जो भी जल महाभूत के प्रधान स्रोतस है उनमें यहाँ पर दुष्टि होगा। जो जलवाहक जो भी है, स्वेदवह है, रक्तवह है, रसवह है, जो भी जल महाभूत प्रधान जो भी धातु है, घटक है, उनमें दुष्टि हो रहा है। तो स्वेद और अम्बुवाहिनी स्रोतस में यहाँ पर पहले अवरोध हो रहा है, वहाँ पर संप्राप्ति पहले बिगिन हो रहा है। तो स्रोताम से संचिता। इसके बाद क्या होगा? प्राण अग्नि अपानान संदुष्य, उसके बाद ये जो स्वेद और अम्बुवह स्रोतस में जो दुष्टि था वो प्राणवह स्रोतस में जाएगा, अग्निवह स्रोतस और अपान के क्षेत्र का विकृति होगा। तो ऐसे संप्राप्ति घट रहा है। तो वहाँ पर सबसे पहले दुष्ट कौन हो रहा है? स्वेदवह हो रहा है और अम्बुवह हो रहा है। तो अम्बुवह स्रोतस में सबसे पहले दुष्टि होगी और स्वेदवह स्रोतस में सबसे पहला दुष्टि होगा। उसके बाद यहाँ पर लक्षण कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? प्राणवह स्रोतस पे लक्षण दिखाई देंगे, अग्निवह स्रोतस पर लक्षण दिखाई देंगे और अपान के क्षेत्र में लक्षण दिखाई देंगे। तो ये एक समानावृत अपान, समानावृत प्राण और समानावृत व्यान की एक दुष्टि है। तो ये इसको समझने के लिए हमें फिर से आवरण समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समानवाद की क्षेत्र दुष्ट हो रहा है, वो है स्वेदवह और अम्बुवह स्रोतस, ये समानवाद के क्षेत्र हैं। तो इनमें दुष्टि होने की वजह से दुष्ट कौन कौन हो रहे हैं? प्राणवह हो रहा है, अपानवह प्राण अग्नि और अपान, वहाँ पर भी प्राण और समान और अपान के क्षेत्रों में विकृति हो रही है। तो हम चिकित्सा किसको करना है? सबसे पहले समान के क्षेत्र की चिकित्सा करेंगे, वहाँ पर अग्नि की चिकित्सा करेंगे। तो ऐसे संप्राप्ति का विघटन होगा। तो पहले समान के क्षेत्र में विकृति होने की वजह से प्राण अग्नि अपानान संदूष्य जनयंती उदरम प्रणाम, तो ऐसे यहाँ पर संप्राप्ति का घटन हो रहा है। तो और इसका विघटन भी हमें करना कैसे है? समान की क्षेत्र की ही चिकित्सा करनी है। तो ऐसे समझ में आया? तो और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संप्राप्ति है। रुद्वा स्वेदाम्बु वाहिनी दोषा स्रोताम से संचिता प्राण अग्नि अपानान संदुष्य जनयंती उदरम प्रणाम। तो वहाँ पर सोतोरोध हो रहा है स्वेद और अम्बुवह स्रोतस में, और यहाँ पर दोष संचित हो रहा है और इनकी वजह से प्राणवह, अग्निवह और अपानवह क्षेत्र दुष्ट हो रहा है। तो ये प्राणवह क्या है?
अग्निवह क्या है और अपान के क्षेत्र क्या क्या है। इसका अगर हम कंटेम्प्रेरी साइंस की दृष्टि से अगर हम इसका विवेचन करते हैं तो क्या है, प्राणवाह क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो पूरा रेस्पिरेटरी, पूरा जो भी नर्वस सिस्टम, ये सब इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम देख भी रहे हैं कि रेस्पिरेटरी की वजह से भी और ये कार्डियो रेस्पिरेटरी जो हम बोलते हैं इनके वजह से भी एसाइटिस होने का लक्षण का हमें रेफरेंस मिलता है। अग्नि का क्षेत्र क्या है, पूरा लिवर पैथोलॉजीज है और इंटेस्टाइनल पैथोलॉजीज है और ये गैस्ट्रिक पैथोलॉजीज जो भी है। और उसके बाद अपान का क्षेत्र क्या है, रीनल पैथोलॉजीज है। उसके बाद जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी का है, स्वेद है, तो ये सब इफेक्ट हो रहा है। इवन द मोशन, यहाँ पर मोशन का भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेटेड रहता है। तो ऐसे अगर हम लक्षणों की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो ये पूरा सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट का बहुत ही बड़ी संप्राप्ति है और बहुत ही क्रिटिकल संप्राप्ति हम देखने को मिलता है। तो प्राण मतलब रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रिक सिस्टम, रीनल सिस्टम, इंटेस्टाइनल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब का इन्वॉल्वमेंट का ये बहुत ही एक बड़ा संप्राप्ति यहाँ पर शरीर में घट रहा है। इसका इतना सरल वर्णन 2 ही लाइन में आचार्य चरक करते हैं। रुद्वा स्वेदाम्बु वाहिनी दोष स्रोतांश संचिता प्राण अग्नि अपान संदोष्या जनयंती उदरम प्रणाम। कहने में बहुत ही सरल है, लेकिन अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते जाएंगे तो ये यहाँ पर बड़ी बड़ी सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट का तो हमें देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम जाएंगे कैसे कैसे हो रहा है। निदान का सेवन हुआ, कोष्ठगत दोषों का प्रकोप हो गया, अवरोध हुआ, ऊर्ध्व और अधोगामी स्रोतस में अवरोध होने की वजह से रसवा स्रोतस में, अम्बुवा स्रोतस में, ऐसे स्रोतसों में जहाँ पर अम्बु बह रहा है तो उनमें अवरोध हो गया। उसकी वजह से कुक्षी का आदमापन हो गया और उदर की उत्पत्ति हो जाता है। तो इसके रूप क्या क्या है, कैसे हमें इसको कहना है कि ये उदर हो गया, तो इसके प्राकृत ये प्रगट रूप क्या है, लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, तो उनमें उनको देखने के लिए अगेन हमें चरक चिकित्सा स्थान में जाना पड़ेगा, उदर चिकित्सा में। वहाँ पर आचार्य कहते हैं आत्मानम गमने अशक्ति, ऐसे लक्षण दिखते हैं। आत्मान है, गमने अशक्ति, दौर्बल्य और शोफ, सदन मंगानम, संगो वात मूत्र पुरुषयो हो, मतलब वात मूत्र और पुरुष का अवरोध हो जाएगा। और दाह तृष्णा, ये जाठरेशु भवन्ति, ये सुश्रुत संहिता के निदान स्थान में भी एक रेफरेंस है आत्मानम गमने शक्ति का। तो आत्मान होगा, जठर का आत्मान मतलब ये जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। गमने अशक्ति, पेशेंट कैन नॉट वॉक फॉर मोर डिस्टेंस। दौर्बल्य होगा, शोफ दैट इज स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी। यहाँ पर शोथ का मतलब है सिर्फ उदर का नहीं, सर्व शरीर में भी शोथ उत्पन्न होता है। इवन द फेशियल एडिमा, इवन द पीडल एडिमा, सब तरह का एडिमास का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। सदन मंगानाम, संगो वात मूत्र पुरुष हो, you can observe in most of these these ascitic patients and these udara patients, there is the first and foremost complaint is constipation. They cannot pass the motions easily. So this is also a lakshana. Daha trishna, so these are the lakshanas explained by Sushruta. And Charaka Asviv is a little bit similar. He says kuksher admanam atopa shofapada karasya. Kuksher admana, that is intestinal distension. Atopa, there is some sort of sound in the intestine. Atopa, shofam pada karasya, swelling in the pada and kara and all over the body. That is swelling. So, shofam pada karasya, mandagnir lakshna gandatvam. Mandagni is again the Agni Dushti. The patient is, even in liver pathologies, whatever the liver pathologies you open in Hutchison or Harrison or anything, the first and foremost Lakshana they say is loss of appetite. In all the liver diseases are concerned. So, liver diseases में तो ये Mandagni is very important. ये patient will address you with this first symptom. And Shlakshna Gandatvam, Ganda Sthala, that is the whole, wherever the swelling is there, it is Shlakshna. Karsham cha udara lakshanam. Karsham cha udara lakshanam, how to understand? There is all over there is swelling only. So here they mean to say, what Acharya Charaka means to say is, the swelling is in Udara Pradesha, the distension is in Udara Pradesha, whereas when you see the patient carefully, his hands, his chest area and his everything is like Krisha. Only except the Udara Pradesha, all the body parts are like they are Krisha. The hands are shrunken and the legs are shrunken, only the abdomen is full. That is how to understand the Karshamsha Udara Lakshanam.
Okay, mandagnesh lakshana gandatvam karshamcha udar lakshana. Kukshi is the only admana, other parts are krusha. Okay, then coming to the critical analysis of these symptoms, when you see, so how to understand these symptoms and dosha the amshamsha kalpana कैसे करना है, इसको देखते हैं. गमनीय शक्ति और दौर्बल्य ये वात वृद्धि की वजह से है और प्राण की दृष्टि की वजह से है. ठीक है, गमनीय शक्ति आत्मान. तो शोथ और शोथ जो है वो कफ और कफ का द्रवतः वृद्धि है. यहाँ पर वात मूत्र पुरुष संग जो है वो अपान की दृष्टि की वजह से है. और पाक जो हो रहा है स्रोतसों में, तो वो पाक अगेन यहाँ पर पित्त की उष्ण गुण की वृद्धि है. और दाह भी है, तो ये भी पित्त की उष्ण गुण की वृद्धि की वजह से है. और शुष्क वक्रता और कार्श जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये स्रोत वात रसवा स्रोतस की दृष्टि की वजह से भी हो सकते हैं. और रूक्ष गुण की वृद्धि जो शरीर में हुआ है उसके वजह से भी ये होता है. तो ये कफ में अगर कफ वात पित्त इनके दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो कफ के क्षय से कफ की वजह से यहाँ पर स्थिरता का क्षय है, पिच्छल गुण की वृद्धि है, गुरु गुण की वृद्धि है. पित्त से अगर हम देखते हैं तो उष्ण और तीक्ष्ण गुणों की वृद्धि है. और वात से अगर हम देखते हैं तो वात का कर्म का क्षय हुआ है और रूक्ष गुणों की वृद्धि हुई है. ये गुण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये इस लक्षणों का हम क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं. तो इसके बाद ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये अब हमने अभी तक देखा, जो आत्मान गमनीय शक्ति, दौर्बल्यम, शोफ, दाह, तृष्णा, कुक्ष, आत्मान, आटोप, ये सब लक्षण दोषों के निरपेक्ष है. ये सभी तरह के उदर रोग में ये लक्षण पाए जाते हैं. वातज, पित्तज, कफज उदर के जो है वो आगे हम देखते हैं, लेकिन ये जो लक्षण है ये सभी उदर में सामान्य है. ये दोषों के निरपेक्ष लक्षण है. ये सभी उदर रोग में ये लक्षण दिखाई देंगे. तो उसके बाद टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो अष्टोदरीयम, द नेम इटसेल्फ आचार्य चरक एक्सप्लेन. तो 8 तरह के 8 टाइप्स ऑफ उदर रोग हैज बीन एक्सप्लेन. दे आर वातज, पित्तज, कफज उदर, सन्निपातज उदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर एंड डकोदर, इट इज जलोदर. So these are the types: Vata, Pitta, Kapha, Sannipataja, Plihodara, Baddhodara, Kshatodara and Jalodara. So all these types of Udara may land up into Jalodara in the eventually. Eventually these all types of Udara may land up into Jalodara if they are not treated at the earliest. So when Jala Utpatti takes place, Jalodara takes place, it is very difficult to cure the disease. उसके बाद अगर हम एक एक टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं वातज उदर की. तो वातज उदर क्या है, वहाँ पर निदान जो देते हैं चरकाचार्य, रूक्ष, अल्प भोजन, आयास, वेग, उदावर्त, कर्षणई, वायु प्रकुपिता, कुक्षेर, हृद्वस्ति, गुद मार्गः. तो यहाँ पर जो निदान आचार्य कह रहे हैं वो सब वात के दुष्टि के निदान है. रूक्ष, अल्प भोजन, आयास, वेग धारण, ये सब वात के प्रकोपक निदान है. तो उसके बाद संप्राप्ति कैसे घट रही है यहाँ पर, हत्वा अग्निम कफम उद्धूय तेन रुद्ध गतिस्तथा. तो वातज उदर जो बन रहा है यहाँ पर कफ की वजह से बन रहा है. तो यहाँ पर कफ की दृष्टि जो है वो परतंत्र है. स्वतंत्र दुष्ट वात है, उसके साथ परतंत्र प्रकोपित कफ मिलता है, तो ये वातज उदर बनता है. तो यहाँ पर जो भी लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि कुक्षे पाणी, अपाद, वृष, स्वयथु, उदर विपाटन, अनियत वृद्धि ह्रास, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा उदर, तो कुक्षी पार्श्वशूल, तो उदावर्त, ये सब लक्षण जो दिखाई देते हैं तो ये वातज उदर के लक्षण हैं. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये है शाव अरुणत्वम च नख नयन वदन त्वक मूत्रवर्चसाम. तो यहाँ पर नख, नयन, वदन, त्वक, इन प्लेस में यहाँ पर शाव अरुण वर्णता दिखाई देगा. तो इन लक्षणों से ही हमें वातज उदर है करके डायग्नोसिस कर सकते हैं. तो यहाँ पर स्रोतो विबंध है, इसकी वजह से विमार्ग गमन हो रहा है. तो लक्षण जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ये वातोदर के हैं. शाव, अरुणत्व, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, ये सब है, ये वातज उदर के स्पष्ट लक्षण हैं. ऐसे जो लक्षण देख के हम कफोदर है करके कंक्लूड नहीं कर सकते. यहाँ पर यही लक्षण है तो ये वातज उदर ही है. तो यहाँ पर कफ के जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो परतंत्र दुष्ट है. इसीलिए हमें निदान पूछना है कि क्या क्या निदान करता था पेशेंट.
अगर हम निदान के बगैर सिर्फ ये लक्षणों पर अगर हम जाते हैं तो ये हम कंक्लूड करने की संभावना ज़्यादा रहता है कि ये कफज उदर है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे पित्तज उदर के। तो पित्तज उदर में जो निदान दिए हैं, कटु आम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण अग्नि, ये सब जो विदाही आहार अध्यशना पित्त, इन सब से पित्त की वृद्धि होता है। तो ये पित्त सर्व शरीर में सेम जैसे उदर की संप्राप्ति में कहा गया, तो उधर सभी स्रोतसों को दुष्ट करेगा, अम्बुवा स्रोतस वगैरह में वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो लक्षण दिखाई देंगे, दाह तृष्णा मूर्छा ज्वर अतिसार दह्यते दूह्यते ऊष्मायते स्विद्यते, ऐसे लक्षण पित्त के लक्षण ज़्यादा दिखाई देंगे, तो इसको पित्तज उदर हम कहते हैं। तो वैसे ही कफज उदर भी है, तो उसमें भी सभी कफज निदान होंगे। अव्यायाम दिवा स्वप्न, स्निग्धाहार पिच्छलाहारों के सेवन अधिक करने से, दधि दुग्ध उदक मांस रस ये सब के सेवन करने से। तो यहाँ पर क्या होगा, उदर में जो है तो कफ का प्रमाण बढ़ेगा। अभी जिस कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि समथिंग अबाउट फैटी लिवर, तो ये लक्षण जो है कफज उदर के, ये स्टार्टिंग जो स्टेज रहते हैं इसमें ज़्यादातर फैटी लिवर के लक्षण दिखाई देंगे। तो शुक्लत्व होगा, नख नयन तदन मूत्र पुरुष में होगा, गुरु स्तिमित स्थिर कठिन होगा। तो ये लक्षण जो है ये कफज उदर के होंगे। तो इसमें पेशेंट को गौरव होगा, रुचि होगी, सारे कफ के लक्षण दिखाई देंगे। यहाँ पर कफ का स्वतंत्र प्रकोप है। इसके बाद सन्निपातज उदर में सारे लक्षण दिखाई देंगे। इसका मेन निदान आचार्य स्पेसिफिकली बोलते हैं, स्त्री दत्तश्च रजो रोम विणमूत्र अस्थि नख आदि भी, जो भी ईर्ष्या के वश, ईर्ष्या की और कोई जलसी की वजह से आपके खाने पीने में कुछ मिला के दे देगा, कोई ऐसे रज जो रजस्राव का द्रव है वो, और केश है और अस्थि है, ऐसे कुछ जो चीज़ है जो विष के समान होते हैं, जो दूषी विष जो हम कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन इनके वजह से भी, ये निदानों के वजह से भी उदर हो सकता है। तो ये सन्निपातज उदर होगा, क्योंकि ये सर्वदोषों का प्रकोपक है, क्योंकि ये सारे तमोगुण के वर्धन करने वाले जो द्रव्य यहाँ पर जो कह रहे हैं, स्त्री दत्तश्च रजो रोम विट मूत्र अस्थि नखादि भी, तो इन सब से अगर वो कंबाइन करके दे देंगे आपको खाने में, तो ये सभी दोषों को प्रकोप करेगा। तो ये सन्निपातज उदर होगा। तो इसमें समस्त लक्षण दिखाई देंगे, सारे वातज पित्तज और कफज उदर के लक्षण सभी यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो इसके बाद और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो प्लीहोदर की है। तो प्लीहोदर एंड यकृतोदरा बोथ आर सेम, as Plihodara is mainly towards, they are explained towards the spleen, and Yakrutodara they have mentioned it towards the pathology of Yakrut. If it is happening in the left side, it is called as Plihodara. If it is happening in the right side, it is called Yakrutodara. So the nidanas they have told is ati ashitasya ati sankshobat yana chestitai, that is after eating heavy good some amount of food and he travels on the horses and or uneven road when he does his journey, तो ऐसे निदानों के सेवन से अति व्यायाम भार अध्व वहन, तो all these nidanas can cause प्लीहोदरा. There they explain two very important lines. Please see the 36th shloka and 35th shloka of Charaka Chikitsa Sthana Udara. So there they explain Vama Parshvashritah Pliha Chutah Sthanat Pravartate Shonitam Va Rasadibhya Vivruddham Tam Vivardayet. So two pathologies are happening here. The first pathology is Vama Pashvar Shitah Pliha Chutah Sthanat Pravartate. This is the first samprapti which is taking place, which means यहाँ पर पेशेंट में मेदोक्षय हो रहा है। मेदोक्षय की वजह से जो हम पाल्पेट करते हैं तो वहाँ पर प्लीहा वृद्धि के जैसे लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकली प्लीहा की वृद्धि उतने अमाउंट में नहीं है, तो इसलिए ये अलग संप्राप्ति है। दूसरा संप्राप्ति जो आचार्य कह रहे हैं कि शोणितम व रसादिभ्य विवृद्धम तम विवर्धयेत, यहाँ पर शोणितादि धातुओं की वृद्धि की वजह से, विवर्धमान शोणित की वजह से, शोणित वृद्धि के निदानों के सेवन करने से जो दुष्ट होगा, तो ये दूसरी संप्राप्ति है। शोणित वृद्धि अभिषंद प्रदान होगा, तो रक्त संचय होगा प्लीहा में और यकृत में, तो इसकी वजह से जो संचित रक्त की वजह से जो प्लीहा का और यकृत का एनलार्जमेंट होगा, तो ये यकृतोदर होगा। तो यहाँ पर जो आचार्य कह रहे हैं, तो ये इसका कंजेशन का जो संप्राप्ति हो रहा है, तो जो कंजेशन की संप्राप्ति है,
तो ये हमें ज़्यादातर कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर जो होते हैं उनके तरफ इशारा है। तो ये जो यकृतोदर एंड दीज कॉजेस, सो एनी अदर रीज़न से भी हो सकता है, प्राणवाह की दृष्टि होगी और परतंत्र यकृत की वृद्धि यहाँ पर होता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे? आचार्य कहते हैं कि कच्छप संस्थानवत वृद्धि, तो जैसे टोर्टाइज होता है, कच्छप होता है, उसके बैक पर कैसे वृद्धि होगी, उसको पाल्पेट करने से कैसे लगेगा, तो वैसे ही पेशेंट का जब आप एब्डोमेन पाल्पेट करेंगे तो कच्छप संस्थानवत वृद्धि वहाँ पर दिखाई देगा। तो यकृत यही लक्षण अगर लेफ्ट में दिखाई देंगे तो आप उसको प्लीहोदर कहेंगे, और राइट साइड में अगर दिखाई देंगे तो उसको हम यकृतोदर कहेंगे। वो प्लीहोदर है, ये यकृतोदर है। तो उसके साथ बहुत सारे लक्षण आचार्य दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो बद्ध गुदोदर है। बद्ध गुदोदर इज द इंडिकेशन टुवर्ड्स सम ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी इन द लिवर। तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी कैसे है? So, like Baddha Gudodara, here they means to say is any intestinal obstruction can cause this Baddha Gudodara. Pakshma balaihi sah annena bhuktair baddhayane gude। पक्ष्मा बाल ये जो भी होते हैं इनका सेवन करने से, ये एक टिपिकल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ट्राइकर एंड ट्राइकोबेजोर एंड बेजोर, you might have heard about this. Some people are habituated of eating some their own hairs, और जो भी हेयर्स मिलते हैं तो उनको खाने की एक पद्धति, एक पैथोलॉजी होता है, उसको बेजोर कहते हैं। तो वो जाके अंदर इंटेस्टाइन में जमा होके एक बड़ा एक बंडल बन के अंदर इंटेस्टाइन में बैठ जाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ पैथोलॉजीज और एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शंस टू द इंटेस्टाइन, और कुछ भी और जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज जो होते हैं, तो इनके वजह से ये उदर बनता है। तो उदावर्त तथा अर्शो बिस तंत्र सम्मूर्छन व अपानो मार्ग संरोधात हत्वा अग्निम कुपितो अनिलः। अपान के मार्ग का अवरोध यहाँ पर होगा, तो इसको हम बद्ध गुदोदर कहते हैं। ठीक है, तो बद्ध गुदोदर है, यहाँ पर मार्ग का अवरोध हो रहा है। दिस मे बी ड्यू टू हेयर्स, दिस मे बी ड्यू टू एनी अदर काइंड ऑफ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक बोन्स और एनी अदर प्लास्टिक का कुछ खा लिया, इनके वजह से जो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैथोलॉजी बॉडी में बनेगा तो उसको हम बद्ध गुदोदर कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे? वर्चो मूत्र संघ इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ देर इज सम 100% इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये सर्जिकल इमरजेंसी है, इसको आप ट्रीट करना मेडिसिनली नहीं हो सकता, इसको सर्जिकल इंटरवेंशन इमीडिएटली चाहिए होता है। तो दिस इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विच इज अ वेरी emergency clinical condition. So only some part of obstruction is present, then you can manage little bit, but अगर पूरा completely obstruction है तो इसको सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले लक्षण दिखाई देंगे मूत्र वर्चस संघ। तो वर्चस जो स्टूल होता है वो कंप्लीट बंद हो जाता है क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ रहता है। और उसके बाद मूढ़वातम, तो यहाँ पर मूढ़वात आचार्य का कहने का मतलब है यहाँ पर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स के एब्सेंस रहेगा, तो ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स बंद हो जाएंगे। उसके बाद नाभि ऊपरी गोपुच्छवद अभिनिर्वर्तयति, नाभि के ऊपर गोपुच्छ के जैसा, जो नाभि के ऊपर अगर आप पाल्पेट करेंगे यहाँ पर तो गोपुच्छ के जैसा यहाँ पर स्वेलिंग होगा, मतलब एक ओवल शेप का यहाँ पर स्वेलिंग दिखेगा जो ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता रहेगा। तो ये एक पैथोलॉजी है, इसको हम बद्ध गुदोदर कहते हैं। ये कुछ और रीज़न से भी हो सकता है, यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल उन्होंने दिया, कुछ और कोई भी वजह से भी अगर यहाँ पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको बद्ध गुदोदर कहते हैं। इसके वजह से भी पेट में उच्छेद होने का संभावना रहता है। तो उसके बाद और एक वेरी डेंजरस पैथोलॉजी जो है वो छिद्रोदर की है। यही उदर मतलब इनके ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से अगर उसमें छेद उत्पन्न हो गया, अगर इंटेस्टाइन्स में या जो भी आंत्र होते हैं उनमें अगर छोटा सा भी अगर वहाँ पर छेद उत्पन्न हुआ या होल उत्पन्न हो गया तो पाक के वजह से, तो इसको छिद्रोदर कहेंगे। इसकी वजह से जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स होंगे वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएंगे, तो वहाँ पर असाइटिस का डेवलप हो जाएगा। ये भी सर्जिकल इमरजेंसी है, इसको ट्रीट करना अनिवार्य है। आचार्य सुश्रुत और चरक भी इसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी ही उत्तम मानते हैं, इसमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट होगा नहीं। तो शर्करा तृणकाष्ठ अस्थि कंटकैर अन्यैर संयुत ही, कुछ भी हो सकता है, शर्करा तृण काष्ठ अस्थि कंटक जो है, इनके वजह से जो इंटेस्टाइनल में परफोरेशन होता है तो उसको छिद्रोदर कहते हैं।
भिद्यते आंत्रम यदा भुक्तैर्जृंभया अतिशयनेन वा पाकं गच्छेत् रसास्तेभ्य छिद्रेभ्यः प्रस्रवद्बहि. So these are the lakshanas explained by again चरक संहिता इन उदर अध्याय. तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है. तो ये कुछ और वजह से भी हो सकता है. ये मैकेनिकल जो आचार कहते हैं उनको छोड़कर अल्सर्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एंटेरिक फीवर जो है उसमें भी इंटेस्टाइनल फ्लोरा और पेयर्स ऑफ पैचेस में भी डिफिकल्टी जो होता है, तो उनमें भी संप्राप्ति में पाक होके उसमें भी इंटेस्टाइन परफोरेशन का रिस्क रहता है. तो ये जो भी इंटेस्टाइनल परफोरेट करने के निदान है तो ये सब छिद्रोदर के अंदर आएंगे. तो यहाँ पर जो उदर उत्पन्न हो रहा है वो भी परतंत्र उत्पन्न हो रहा है. यहाँ पर स्वतंत्र दोषों की दृष्टि नहीं है, ये परतंत्र उदर है. उसके बाद सब लास्ट में जो 8th टाइप ऑफ उदर है उसको जलोदर कहते हैं. जलोदर है, इसका निदान आचार्य कहते हैं स्नेहपीतस्य मंदाग्ने क्षीणस्य अतिकृशस्य वा. स्नेहपीतस्य मंदाग्ने क्षीणस्य अतिकृशस्य. यहाँ पर 4 वहाँ पर एक जो क्राइटेरिया दे रहे हैं. जो आदमी स्नेह का पान कर रहा है, जो आदमी मंद है, मंदाग्नि वाला है, क्षीण है, अतिकृश है, ऐसे रोगी में अत्यंबुपान करता है. जो स्नेहपान कर रहा है और अत्यंबुपान करेगा, जिसके मंदाग्नि है वो अत्यंबुपान कर रहा है, जो सबसे क्षीण है, धातु क्षीण है, अग्नि क्षीण है, वो अत्यंबुपान कर रहा है. और अतिकृश है, सर्व धातुओं का क्षय है उसमें और वो अत्यंबुपान कर रहा है. तो इनमें क्या होगा, अग्नौ नष्टो अग्नौ मारुतः क्लोमनि संस्थितः. तो यहाँ पर क्लोम की दृष्टि होगी. तो यहाँ पर क्लोम का मतलब सिर्फ हमें क्लोम ही नहीं लेना है. यहाँ पर क्लोम का मतलब पूरा उदकवह संस्थान है. तो उदकवह जो भी दृष्टि है, उदकवह में जो भी धातु इन्वॉल्व है वो सभी इसमें अंतर्गत हो जाएंगे. तो यहाँ पर कफज शोथ की उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे द्रवता ज़्यादा है, इसलिए हम इसको जलोदर कह रहे हैं. तो स्रोतः सु रुद्ध मार्गेषु कफश्च उदकमूर्छितः वर्धयेताम तदेव अम्बु स्वस्थान उदरायतौ. तो यहाँ पर स्रोतस में मार्ग अवरोध होने की वजह से जो कफ है, कफ से मूर्छित जो दोष धातु है, तो वो कोष्ठ में संचय होके वहाँ पर उदर का वर्धन होने लगेगा. तो इसको हम जलोदर कहेंगे. इसके लक्षण क्या क्या होंगे, अनन्ना, कांक्षा, पिपासा, ये सब लक्षण होंगे. इसको भी हम 3 तरह में डिवाइड कर सकते हैं. एक अजातोदक अवस्था है, दूसरा पिच्छा उत्पत्ति का अवस्था है, और तीसरा जो है वो जलोदर की अवस्था है. तो फर्स्ट अवस्था हम देखते हैं अजातोदक की अवस्था क्या है. तो अभी यहाँ पर जल की उत्पत्ति नहीं हुई है इस स्टेज में. तत्र अचिरोत्पन्नम अनुपद्रवम उदकम अप्राप्तम उदरम त्वरमाणस चिकित्सेत. यहाँ पर अर्ली स्टेज है, ये स्टेज में अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स नहीं हो रहा है. देयर इज नो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स हियर एट, एंड द फॉलोइंग सिम्टम्स लाइक abdomen स्लाइट रेड इन कलर, एंड जो राजी है अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उदर का उच्छेद अभी नहीं हुआ है. तो ये जो लक्षण है, एडिमा नहीं है, तो ये अजातोदक की अवस्था है. तो ये इन दिस अजातोदक अवस्था यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एट द अर्लीएस्ट बाय सीइंग दीज लक्षणास. सो ये हुआ अजातोदक की अवस्था. दूसरा है पिच्छा उत्पत्ति की अवस्था. सो इन सेकेंड स्टेज स्वेदश्च बाह्येषु स्रोतस्सु प्रतिहत गति. तो दिस इज अबाउट the Svedavah Srotas. Acharya is explaining Sarva Udaka Dhatus to be understood here by this Svedavah and Tiryak Dhatu. So the doshas which are traveling, they are got obstructed if neglected in all kind of udaras, they can end up with this picha utpatti. So doshas get displaced from their own sides, make more fluid to accumulate in the channels and sandhis and other tissues. So they get mixed with ambu, making पिच्छलता and collecting in the abdomen. तो ये ऐसा एक संप्राप्ति होगा. तो इसको हम पिच्छावस्था कहेंगे. यहाँ पर पूरी जल की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई है, ये पिच्छा की अवस्था है. तो फ्लूइड जो है वो सर्व शरीर में थोड़ा थोड़ा स्प्रेड होते जाएगा. तो इसको पिच्छा अवस्था कहेंगे. तीसरा है उदर की अवस्था, जो जलोदर की अवस्था, पूरा जल का उत्पन्न हुआ है. तो इसमें कुक्षेर अतिमात्र वृद्धि होगा. एब्डोमेन सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंड हो जाएगा. सिरा अंतर्दगनम, ऊपर जो
जो वेनस दिख रहे थे वो सब अंतर्धान हो जाएंगे, उदक पूर्ण धृति स्पर्श वहाँ पर मिलेगा, तो क्षोभ होगा। उदक पूर्ण धृति स्पर्श जो आप फ्लूइड थ्रिल टेस्ट जो करते हैं तो इसमें पॉजिटिव पाया जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर उदर का जलोदर का मतलब सिर्फ पेट में पानी भरना नहीं है, सर्व शरीर में शोथ उत्पन्न होगा। तो सर्व शरीर में शोथ की उत्पन्न होना, उदक व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, वेद व स्रोतस, ये सभी स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होकर उदर की संप्राप्ति घट जाएगी। तो ये उदर की संप्राप्ति है। तो ये बहुत ही व्यापक संप्राप्ति है, ये सिर्फ एक छोटा एक स्रोतस में होने वाला, एक स्थान में होने वाली संप्राप्ति नहीं है। तो ये सर्व शरीर में होने वाली एक बहुत ही भयंकर संप्राप्ति है, क्योंकि आचार्यों ने इसको महागध कहा है। तो महागध का मतलब क्या है, तो ये ट्रीटमेंट की दृष्टि से बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये जो अष्ट उदर है, इनको अगर हम क्लिनिकली और कंटेम्प्रेरी साइंस में थोड़ा सा ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के तरफ से अगर हम देखते हैं, तो ये वातज और पित्तज उदर जो है वो इशारा करते हैं प्राइमरी पेरिटोनाइटिस की तरफ। तो पेरिटोनाइटिस जो है तो उसमें यही लक्षण ज़्यादातर दिखाई देंगे। तो ये उस टाइप के जो असाइटिस होगा तो ये उसकी वजह ये पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होगा या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होगा। तो दूसरा जो कफज उदर है, तो ये पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस जो कहते हैं, तो इसमें जो असाइटिस होने की संभावना रहता है, तो इसको कफोदर की श्रेणी में हम ला सकते हैं। तो सबसे जो त्रिदोष या सन्निपातज जो उदर है तो वो मैलिग्नेंट असाइटिस से हम कंपेयर कर सकते हैं। जो प्लीहोदर है तो वो स्प्लिनोमेगाली है, इट मे बी ऑफ वेरियस रीजन्स, एंड यकृतोदर इज अगेन द हेपेटोमेगाली, दिस मे बी आल्सो ऑफ वेरियस रीजन्स, एंड बद्धोदरा इज chronic intestinal obstruction. Shatodhara is again the peritonitis, secondary peritonitis leading to perforation, and Udakodhara is again due to the gross ascites which may be due to any other reasons. तो इस तरह से हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हुआ उदरों के टाइप्स के बारे में। अष्ट उदर, 8 तरह के उदरों को हमने देखा, उनके लक्षण हमने जाना और उनकी संप्राप्ति भी हमने देखी। इसके बाद हम जाएंगे असाध्यता की ओर। तो ये उदर रोग कब असाध्यता की तरफ जाएगा, कब हम समझेंगे कि ये उदर रोग असाध्यता को प्राप्त हुआ है और इसकी चिकित्सा नहीं करनी है। तो ये लक्षण होंगे शूनाक्षम कुटिल उपस्थम उत्क्लिन्नम तनुत्वचम बलशोणित मांस परीक्षीणम च वर्जयेत। ये लक्षण चरक चिकित्सा स्थान में उदर चिकित्सा में ही बोला गया है। तो ये लक्षण अगर दिखाई देंगे तो आप इस ऐसे व्याधि के, ऐसे रुग्ण को आप नहीं छुएंगे और इनके आप चिकित्सा नहीं करेंगे। तो ये असाध्यता के लक्षण हैं। शूनाक्षम, पूरा ऑर्बिटल स्वेलिंग हो गया है। कुटिला उपस्थम, उपस्थ इज अगेन द जेनिटल ऑर्गन्स, दे आर कुटिला, देयर इज आल्सो ग्रॉस स्वेलिंग इन द स्क्रोटम एंड आल्सो ऑन द पेनिस। और उपस्थम उपक्लिन्न तनुत्वचम, तो सर्व शरीर में क्लिन्नता उत्पन्न होगा। और तनुत्वचम, तनुत्वचा इज द स्किन हैज बिकम वेरी ब्रिटल एंड वेरी वेरी लाइट। तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। तो श्वयतु, सर्व मर्मोत्थ श्वयतु, मर्मोत्थ श्वयतु वेरी इंपॉर्टेंट है। मर्मोत्थ श्वयतु का मतलब है मर्म के स्थान पर स्वेलिंग होना, हृदय, बस्ती, नाभि, तो ऐसे जगहों पर और लक्षणों अगर स्वेलिंग हो रहा है, अगर वहाँ पर उत्सव दिखाई दे रहा है, मर्म स्थान है, तो ये असाध्यता का दर्शक करता है। श्वास हिक्का अरुचि, तो ये लक्षण साथ में है। जन्मनेव उदरम सर्वम प्रायः कृचृतम मतम, तो अगर जन्म से किसी को असाइटिस के साथ है तो ये भी असाध्यता के ही लक्षण है, तो इनकी चिकित्सा हम नहीं कर सकते। नवोत्थित जो है, जो नव उदर है, वो हमेशा साध्य होता है, बाकी के जो भी है ये कृचर साध्य होते हैं। तो ये असाइटिस अगर हम मॉडर्न की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये इट्स द बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द स्पेस बिटवीन लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हम कहते हैं। तो पेरिटोनल कैविटी में पानी भरना या जो फ्लूइड का जो भरना होता है उसको हम असाइटिस तो कहते हैं। तो इस तरीके से हमने उदर के 8 तरह के उदर रोगों को हमने देखा। तो उसके बाद तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकेंगे और कल हम चिकित्सा का बात करेंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा हो चुका है। तो कल जो है यहाँ पर संप्राप्ति और टाइप्स तक हुआ है, तो कल उदर रोग के हम चिकित्सा और उनकी चिकित्सा कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और इनका मॉडर्न कंपैरिजन करके भी देखते हैं। और इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स का हम अभी तक छुआ नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशंस कैसे करना है, तो
तो एग्जामिनेशंस कैसे कैसे करना है और इनमें कौन से इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, what are the physical tests which are to be done, all those things we'll see in the next class. I think I'll again come in front of you tomorrow with these चिकित्सा aspects. So till then मैं आप सबसे अभी और कुछ डाउट्स कमेंट्स में हैं तो मैं उत्तर करूंगा बाद में। तो ठीक है, अब यहाँ पर रुकने का समय है। धन्यवाद।